Hello students, so this is our third video where we are going to understand the different specialization in the parenchymatous tissue which are basically protective in nature. So we have just understood the transverse section of a plant stem and understood the presence of different kind of tissues here. So अगर हम इसके outer layer पे इन cells को देखें, आप देख सकते हो these cells are highly arranged and having a kind of structure that will not allow any kind of imperfection or any kind of virus or any kind of infectious agent to easily come inside. So what are these outermost layer of cells present in the plant? This is known as the epidermis. अब इस epidermis के structure को अगर आप microscopic view में देखोगे आपको पता होना चाहिए epidermis is nothing but a specialized form of parenchymatous cells only. ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं ये बाकी के पेरेनकाइमेटस सेल से अलग होंगे. अलग में क्या है? फर्स्ट थिंग यू कैन सी दे आर रेक्टेंगुलर इन स्ट्रक्चर. ये आइसोडायमेट्रिक नहीं है, रेक्टेंगुलर है. साथ ही में जो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के एपिडर्मिस होते हैं इसके आउटर वॉल्स और साइड वॉल्स आर मोर थिकर एज कंपेयर टू द इनर वॉल्स. दैट मीन्स ये जो चार अलग अलग बॉर्डर्स है इसमें से आउटर वाला वॉल और साइड वॉल जो होगा वो ज़्यादा थिक होगा. ये थिक इसलिए होता है बिकॉज इट इज़ बेसिकली स्टॉपिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेडर टू फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड. तो ये इन्वेडर आउटर साइड से ही एंटर करेगा और वो चाहेगा साइड वॉल से उसको क्रॉस करके बाहर आ जाए. तो उसे रोकने के लिए एपिडर्मल सेल्स के जो साइड वॉल्स होते हैं और आउटर वॉल्स होते हैं दे आर रियली thick in nature. It can have hair-like structures like trichome on it. It can have a layer of cutin like cuticle. It may have a waxy coating in it, for example in the case of aquatic plants. Now, epidermis somewhere are having certain pore-like structures और उन pore-like structures को surround करने के लिए किडनी जैसे शेप के सेल्स होते हैं, बीन शेप्ड सेल्स होते हैं. ये जो किडनी शेप्ड के सेल्स हैं इन्हें बोला जाता है गार्ड सेल्स. एंड दिस एपर्चर थ्रू विच gases can come in and out easily is basically known as stomatal aperture. So here the complete structure will be known as stomata. So in a way stomata are the tiny porous structure present on the epidermis layer which is helping in the entry and exit of gases as well as a process to transfer the water into its water vapor and release it from these stomatal structure. So यहाँ पे याद क्या रखने की चीज़ है epidermis में that these dermal tissue cells are rectangular cells with thickenings more in outer and side walls and has no intercellular space. बिल्कुल भी intercellular space नहीं होता जबकि parenchymatous cells में intercellular space is highest. अगर आप इसे इस टिश्यू में देखोगे तो ये रिंग जैसा जो स्ट्रक्चर है और इसके आउटर वॉल में जो लेयर प्रेजेंट होगा वो एपिडर्मिस का लेयर प्रेजेंट होगा. ठीक है. नाउ कम बैक टू एंड लेट्स अंडरस्टैंड एपिडर्मिस टू अ बेटर फॉर्म. So this epidermal layer that you can see has a very proper functioning. The epidermis is usually present in the outermost layer of the plant body such as leaves, flowers, stems and root. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेम में एपिडर्मिस होगा. प्लांट के किसी भी ऑर्गन में अगर आउटर लेयर का टिश्यू पूछा जाए तो वो क्या होगा? एपिडर्मिस होगा. एपिडर्मिस इज नॉर्मली वन सेल थिक and is covered with cuticle. Cuticle मतलब क्यूटिन. Cells of epidermis are elongated मतलब rectangular shaped है, flattened and do not contain any intercellular space. अब ये flattened क्यों है, rectangular shape क्यों है? क्योंकि अगर ये isodiametric होते तो अगर ये join होते तो कुछ ना कुछ obviously intercellular space हमेशा बचता. But अगर वो flattened है, rectangular है, no such space is available. Now let's talk about the function. The main function of the epidermis is to protect the plant. क्योंकि ये protection के में help कर रहा है. It is impervious to invader. तो ये basically किस चीज़ में सबसे पहले help कर रहा है कि कोई भी invader चाहे वो virus हो चाहे कोई microorganism हो वो easily enter
ना कर पाए और प्लांट को डेसिकेट ना करे। डेसिकेट मतलब इन्फेक्शन कॉज ना करे, प्रॉब्लम कॉज ना करे। क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। जो क्यूटिन का लेयर प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, वो वाटर के लॉस को कम करवाता है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करवाता है। एंड इट इज ऑल्सो प्रिवेंटिंग इन द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। नाउ टू अंडरस्टैंड द स्टोमेटल एपर्चर, मैंने आपको बताया था एपिडर्मल के अगर लेयर्स होंगे, एपिडर्मिस के अगर सेल्स हैं तो कहीं कहीं पे यहाँ पे होल्स या पोर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये पोर है जो जगह, ये छोटी सी जो जगह आपको दिख रही है, इसे बोला जाता है स्टोमेटल एपर्चर। इसको सराउंड करने वाले जो किडनी शेप्ड सेल्स आपको दिख रहे हैं, बीन शेप्ड सेल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स, GUARD। गार्ड मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस आप देख सकते हो, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब इस गार्ड सेल को इमीडिएटली जो कवर करने वाले अदर डिफरेंट सेल्स हैं, दिख रहा है किडनी शेप्ड सेल्स के चारों तरफ एक डार्क कलर के सेल से कवर कर रखा है, इस सेल का नाम होता है सबसिडियरी सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द क्लोजनिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, दैट यू विल अंडरस्टैंड इन क्लास 10। सब्सिडियरी सेल्स के जो आसपास के सेल्स हैं वो आपके नॉर्मल एपिडर्मल के सेल्स हैं। आप देख सकते हो 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आर एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। ये स्टोमेटा के गार्ड सेल है, ये भी पैरेन्काइमेटस है। ये आपके सब्सिडियरी सेल्स है, ये भी पैरेन्काइमेटस है। ये एपिडर्मल के सेल्स हैं, दीज आर ऑल्सो पैरेन्काइमेटल सेल्स बट दे आर हाईली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Now, stomata is always not present, the guard cells are always not in the bean-shaped structure. In some of the plants like monocot, ये जो structure होता है guard cell का, ये डम्बल जैसा होता है, डम्बल shaped cells are there. So there could be a variety, but अभी के लिए in smaller class, we normally make it as kidney shaped cells. Now, this will allow for a process known as transpiration, which is the release of excess water from the stomatal pores in the form of water vapor. तो लॉस हो रहा है वाटर का in the form of water vapor from the aerial plant parts of the plant. aerial मतलब जो एयर के कांटेक्ट में है, तो वो लीफ हो सकता है जिसमें स्टोमेटाज है। It could be even stems through certain porous structures known as lenticels. ट्रांसपिरेशन के फायदे क्या क्या हैं? Transpiration, one thing it will help is to release the excess water present in the plant. तो अगर excess water जमा हो गया है प्लांट में तो उसे excrete करने का एक प्रोसेस हो गया। दूसरा, it will help to create transpirational pull, to pull water from the ground to great height of the plant. तो water के conduction में भी help करेगा। और तीसरा जो ये help करता है, ये help करता है प्लांट के cool down होने में। द वे वी वेन स्वेट, हमें जब स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो ईजिली हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री की क्लास में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली प्लांट के कूलिंग में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर हियर, बार्क। आपने देखा होगा हर प्लांट में एपिडर्मिस नज़र नहीं आता। कुछ प्लांट में वो एपिडर्मिस का लेयर ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर दैट इज कवरिंग द होल प्लांट एंड इट इज़ मोस्टली अ डेड लेयर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है बार्क टिश्यू और कॉर्क टिश्यू। सो यू कैन से when the plant is maturing, when it is growing, the epidermal layer is ruptured. epidermis के जो layer होते हैं वो rupture होने लगते हैं और cork के cells धीरे धीरे इस bark के formation में help करते हैं। How are these cork cells important? Cork cells are dead cells. Okay? अगर वो dead cells हैं तो उनके मेंटेनेंस में कोई खर्चा नहीं होगा, प्लांट का कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। एपिडर्मिस के लेयर तो लिविंग होते हैं। दूसरा, even if they are dead, still they are doing a work. What they are doing? They are protecting the plant from the outer atmosphere. Cork cell along with the lignin, along with the cutin, it is also having a chemical called suberin. Suberin is important. Why? Because suberin is even impervious to gases. Suberin अगर present है cork cell में
तो इस बार्क के अंदर कोई एक गैस का पार्टिकल भी अननोन नहीं जा सकता जब तक उसके लिए पोर ना प्रेजेंट हो। तो अगर मैं इसे ट्री का स्ट्रक्चर बोलूं तो आप समझ सकते हैं, बाहर की तरफ बिल्कुल जो आउटर लेयर है वो कॉर्क है, ठीक है। अंदर उसके येलो वाला जो पार्ट है वो फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर वास्कुलर कैम्बियम है, फिर आपको जो वुड वाला स्ट्रक्चर दैट इज बेसिकली द जाइलम। सो द आउटर मोस्ट लेयर, मतलब अगर सॉफ्टर प्लांट्स है, यंग प्लांट है, तो आउटर मोस्ट लेयर विल हैव एपिडर्मिस, एंड एज द प्लांट मैच्योर्स द रप्चर्ड एपिडर्मिस विल फॉर्म नाउ कॉर्क टिश्यू। कॉर्क हमने पहले कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था चैप्टर सेल में, दैट कॉर्क टिश्यूज वेर ओनली ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक टू फाइंड द फर्स्ट सेल इन देम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जाइलम फ्लोएम के मतलब को समझेंगे। थैंक यू सो मच।